Assalamu alaikum, everyone. Thank you for joining me today. In this presentation today, we are actually going to talk about the concepts of the security, what the security threats, risk, and the issues are, and how the security solution and the services you can actually explore as a student from a career path perspective, what you need to look at from your ongoing professional career, and then where and how you can actually learn about different things from Microsoft when it comes to a platform security and other security. Mod of this session is mostly going to be like a combination of English and Urdu. I am a Microsoft employee as a cybersecurity architect, and I'm based in the US. So I will try to stay focused on the topics which are more of an industry specific versus what Microsoft or the other platforms has to offer. To begin with, I just wanted to show you all कि हमारे जो सेशंस थे ओवरऑल जो लर्निंग सेशंस की जो सीरीज चल रही है इसमें क्या डिफरेंट सेशंस थे कौन से डिलीवर हो चुके हैं जितने भी आपको ये ग्रीन हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं वो डिलीवर हो चुके हैं और अभी जो हम सेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो है हमारा ओवरव्यू ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी जिसके अंदर हमारा फोकस जाएगा कि डिफरेंट सिक्योरिटी के सोल्यूशंस क्या है उसमें डिफरेंट सर्विसेज क्या है और माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स क्या है जिसके ऊपर आप काम करके अपना करियर डेवलप कर सकते हैं इंशाल्लाह मेरे सेशन के बाद आगे अभी दो सेशंस और हैं एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग वो भी सेशंस ज्वाइन करें ताकि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके अबाउट आवर सॉल्यूशंस एंड यू नो हाउ यू कैन एक्चुअली प्लान फॉर योर करियर डेवलपमेंट सो before we start the session and talk about the technical depth of this products and the reasons of why do we need to learn about those things and why it is important, let's first talk about who I am. मेरा नाम रियाज जवेद भट्ट है, as I told earlier as well. Just like many of you guys, I graduated from Pakistan in Punjab University, a batch of fall 2005, 2009. I'm currently working as a cybersecurity architect at Microsoft for the past 3.5 years now, but I am in the industry for a little over 15 years now. I have worked with customers across the globe to help them solve their complex security issues with the help of a different solutions, whether it's a technology solution, people, or the process that they have. मेरा जो career का focus है, again, I have been focusing on multiple things throughout my 15 years of professional career, but right now I'm actually focused on anything around cybersecurity resilience. और मैं इसके बारे में बात भी करूंगा कि resilience हम किस चीज़ के टर्म में रेफर कर रहे हैं, risk management, and then we also look at the incident response and the security operations modernization. मैं इन सब टॉपिक्स को थोड़ा सा टच भी करूंगा. आई विल टॉक अबाउट के इनके अंदर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास और किन किन एरियाज में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं टू एक्सप्लोर फ्रॉम ए करियर अपॉर्चुनिटीज परस्पेक्टिव. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट के सिक्योरिटी रिस्क होता क्या है बिफोर मैं एक्चुअली डीप डाइव जाऊं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की डिमांड है. लेट्स जस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स ऑफ के सिक्योरिटी रिस्क क्या है or why it is important when it comes to a cybersecurity. Risk in generally, जो आप अगर ISO 31000 framework के अंदर definition पढ़ें, again industry में multiple standards frameworks हैं, हर एक की definition, but the common thing that it has is कि security risk is actually a potential for a loss or a damage जो कि arise होता है when there is a threat actor जो कि किसी vulnerability को exploit कर सके. ठीक है, अब इसके अंदर मैंने डिफरेंट टर्म्स यूज की हैं. जो एक तो है कि आपके डैमेजेस हैं, ठीक है, और वो कहाँ से आपके आते हैं, बेसिकली वो आते हैं जब कोई एक थ्रेट एक्टर किसी वीकनेस को आपके जो सिस्टम के अंदर है उसको एक्सप्लॉइट करता है. ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये कॉम्बिनेशन है मल्टीपल चीज़ों का. ठीक है, क्योंकि एक तो चीज़ हो गई है कि आपका इंसिडेंट होने के चांसेस कितने हैं, probability, right, the concept of the probability. और दूसरा कंपोनेंट इसमें आ जाता है आपका कि अगर वो चीज़ हो गई तो उसका नुकसान कितना हो सकता है. ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें कंबाइन मिलके आपका बताती हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेके एक स्पेसिफिक रिस्क और इशू का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू एक्चुअली डिफाइन कि आपकी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या होगी. आप उसके लिए कोई नया कंट्रोल इंप्लीमेंट करेंगे, आप उसके लिए कोई सर्विस लेंगे विच कैन बी एज सिंपल एज के आपने एक सर्विस प्रोवाइडर ले लिया, हायर कर लिया, या फिर आपने इंश्योरेंस खरीद ली फ्रॉम ए साइबर परस्पेक्टिव, तो आपने टेक्निकली वो रिस्क ट्रांसफर कर दिया टू टू द अदर पार्टी. या उस रिस्क को आप स्ट्रेट अवे एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क है बट इसको चेंज करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव भी नहीं कर सकती.
तो इन सब चीज़ों के पैरामीटर्स को देखते हुए रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। वन लास्ट एरिया फ्रॉम a रिस्क परस्पेक्टिव, और ये चीज़ मैं बड़ा कॉमनली फील्ड के अंदर भी देखता हूँ कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ कि जी रिस्क मीन्स नेगेटिव, कि अगर रिस्क है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होगा। दैट नेगेटिव कैन बी ए रेपुटेशनल डैमेज टू द कंपनी, फाइनेंशियल डैमेजेस टू द कंपनी, आपका डेटा लीकेज हो सकती है, और कोई और दूसरा इशू हो सकता है। बट इन शॉर्ट एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं इन सब चीज़ों को भी देखूँ तो ये कलेक्टिवली किसी भी कंपनी के जिसमें आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को इम्पैक्ट कर रहा है। रेपुटेशन इम्पैक्ट होगी तो कस्टमर जो उस कंपनी का है, जो कंज्यूमर है उनकी प्रोडक्ट्स का, वो नहीं आएगा। सो टेक्निकली दे विल लूज बिजनेस विच विल एंड अप फाइनेंशियल इम्पैक्ट। अगर उनका वैसे कोई डेटा लॉस होता है, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन होती है कंपनी में ड्यू टू अ सिक्योरिटी इंसिडेंट, तो वो रेगुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इम्पैक्ट करेंगे, उस पर फाइन्स भी हैं, देन द कंपनी हैज़ टू बिल्ड देयर रेपुटेशन एज वेल। देन द थर्ड वन इज कि अगर थ्रेट एक्टर को somehow they got into the systems और वो फाइनेंस सिस्टम्स में चले गए, उनके पास फाइनेंशियल कंट्रोल आ गया आपकी इन्फॉर्मेशन का, तो दैट स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट्स यू फ्रॉम ए फाइनेंशियल परस्पेक्टिव। द की थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इसके जब रिस्क होता है और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई वनरेबिलिटी या कोई थ्रेट एक्टर उसको एग्जीक्यूट करता है, तो वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट कंपनी को होता है। दो वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों साइडों से होता है। डायरेक्टली आपका फाइनेंसेस पे इम्पैक्ट हुआ, जिस तरह से न्यूज़ में आप पढ़ रहे होंगे कि ये रैंसमवेयर अटैक हुआ तो उस कंपनी ने रैंसमवेयर पे किया टू गेट द डिक्रिप्शन की फॉर देयर डेटा। उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट नजर आ रहा है कि जी इतने पैसे दिए तो हमने की लेके उसको डिक्रिप्ट कर दिया। बट ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो स्ट्रेट अवे प्रोमिनेंट नहीं होता, वो क्या है? कंपनी की जो रेपुटेशन डैमेज हुई, रेगुलेशंस ने जो कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की और द कंट्रोल्स दैट दे हैव टू इम्प्लीमेंट और ऑडिट, और ये वो जो डिपेंड्स ऑन कि कंपनी किस किस्म की है, वो सब रेगुलेशंस का जो इम्पैक्ट है वो एक इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है। अब मैंने बात की थी कि रिस्क हमेशा नेगेटिव थॉट प्रोसेस पे आता है, ठीक है, लेकिन रिस्क पॉजिटिव भी होते हैं विच ड्राइव्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी, ठीक है। इसमें एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि नया बिजनेस का कोई मॉडल लॉन्च करना है, आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है, सर्विस लॉन्च करनी है। उसमें भी रिस्क है कि व्हाट इफ कि ये सर्विस नहीं चली तो क्या होगा? जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो सारी ज़ाया हो जाएगी, या 80% इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी, या क्या होगा? लेकिन वो जो रिस्क है दैट एक्चुअली इज बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी, कि अगर उस अपॉर्चुनिटी को आपने कैप्चर कर लिया कि लेट्स से आपकी जो प्रोडक्ट थी वो अप टू द मार्क है, आपने मार्केट में लॉन्च की, आपके कस्टमर बेस आपकी प्रोडक्ट का यूज़ करने लगे, then it drives a revenue for the company. And that's actually a risk which is tied up with an opportunity कि आप उस opportunity को कैसे avail करते हैं। इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि अभी कोविड गया है, ठीक है, 4 साल पहले कोविड हो रहा था, तो लोगों ने क्या बोलते हैं वो किया था कि जी कोविड के अंदर के वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी थी, इसमें आप लोगों के लिए रिस्क भी था। When we talk about from an opportunity perspective कि लोगों ने अपने बिजनेस सेटअप किए रिमोट सर्विसेज के लिए, बिकॉज इट वाज इजी फॉर द कंपनीज एज वेल कि वो रिमोट सर्विसेज अवेल कर रही नहीं बेस्ड फॉर पीपल बेस्ड इन पाकिस्तान या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें काम चाहिए था। अब इसमें रिस्क भी यही था कि मतलब कंपनी जब आपके पास रीच आउट कर रही है, व्हाट इफ के वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपसे कहे कि हमें आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए बिकॉज वी मूव ऑन टू अ डिफरेंट मॉडल। तो ये एक अपॉर्चुनिटी और रिस्क हमेशा आपस में टाइड अप होते हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर कि रिस्क हमेशा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। यू जस्ट नीड टू इवेल्युएट फ्रॉम एन एस्पेक्ट कि आपको किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। सो मैंने रिस्क के साथ काफ़ी इंटरचेंजेबली टर्म्स यूज़ की, जैसे कि vulnerabilities, threats, exploiting the threat and things like that. So let's talk कि vulnerability क्या होती है, ठीक है। अब मैं जो बात करूँगा इन चीज़ों की, I'm going to talk about more from a security perspective, ठीक है, लेकिन आप इसको डे टू डे लाइफ में भी एक कॉमन आपकी जो चीज़ें हैं आप उसके साथ भी इन चीज़ों का कंपेयर कर सकते हैं। अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट इज द सेम। सो इसीलिए मैं अक्सर लोगों से ये सजेशन भी देता हूँ कि इफ़ यू आर ईगर एंड यू पे अटेंशन टू द बेसिक्स इन आवर डेली लाइफ, आप सिक्योरिटी में बहुत इजीली सक्सेसफुल बन सकते हैं, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं और वही चीज़ें हम सिक्योरिटी में इम्प्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है, आई मीन साइबर सिक्योरिटी में।
अगर आप उन बेसिक चीज़ों को उधर से देखें, इधर साइबर सिक्योरिटी में देखें, तो आपको काफ़ी चीज़ें कॉमन पैटर्न्स नजर आएंगे जो कि आप इम्प्लीमेंट करते हैं, और दैट एक्चुअली हेल्प्स यू टू एक्चुअली थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और उसको के ईजी वे में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बिकॉज हमें सिक्योरिटी में चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी, वी नीड टू कीप इट सिंपल एंड वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ताकि हम बिजनेस को इनेबल करें, ना कि इसको इतना कॉम्प्लिकेट बना दें फ्रॉम सिक्योरिटी परस्पेक्टिव कि आपके जो बिजनेस यूजर्स हैं या जो कंज्यूमर है सर्विसेज के, वो सर्विस को कंज्यूम करना छोड़ दें बिकॉज कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड उनके लिए कि वो यूज नहीं कर सकते, इट्स नॉट यूजर फ्रेंडली, राइट? सो कमिंग बैक टू दी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एंड थ्रेट क्या होते हैं। वल्नरेबिलिटी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ये आपके सिस्टम की वीकनेस है या फ्लॉ है, जो कि आपके आप एक एप्लीकेशन में भी हो सकता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें कोई वीकनेस है, वो आपके प्रोसेसेस में भी हो सकता है विच इज़ मोर लाइक ए आउटसाइड द टेक्नोलॉजी एरिया, ठीक है, और वो आपके बेसिकली सिस्टम में भी हो सकता है। जैसे मैं उनकी सिंपल एग्जांपल दूं आपको, आप एक एप्लीकेशन विंडोज सर्वर पे रन कर रहे हैं, ठीक है, अब विंडोज सर्वर के अंदर भी नॉन वल्नरेबिलिटीज हैं जो कि पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड हैं, ठीक है, उनके लिए पैचेस भी अवेलेबल हैं कि आप ये पैच कर लें, इसके ये कर लें, या ये इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर लें, और उस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर लें। अब उन पैचेस को अगर आपने नहीं इम्प्लीमेंट इंस्टॉल किया हुआ अपने सर्वर के ऊपर या सर्वर्स के ऊपर, तो आपकी वो एक वल्नरेबिलिटी जो है, वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है और आपने उसको रिमीडिएट नहीं किया हुआ। अब उसका क्या होगा कि अगर एक थ्रेट एक्टर है, और इन लेमन लैंग्वेज एक हैकर है, जो जिसको पता है कि ये वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं सिस्टम में, और उन वल्नरेबिलिटीज को कैसे एक्सप्लॉइट करना है ताकि मुझे वो अनलॉफुल एक्सेस जो है आपके सिस्टम का मिल जाए, और वंस दैट अनलॉफुल अनऑथराइज्ड एक्सेस इज गिवन और बीइंग रिट्रीव्ड, तो उससे मैं आपको और आपकी कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा अगर ईमेल सिस्टम या मेरी एबीसी एप्लीकेशन अगर हाई हैक भी हो जाती है, ठीक है, तो उससे मुझे बेसिकली मसला नहीं होता, मेरा उस पर कंसर्न नहीं होता कि वो एक सिस्टम का जो डाउन टाइम था। बिकॉज अगर एक मैं साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स में देखूं, जो हम तीन चीज़ों पर मेन फोकस करते हैं, दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, और उसके बाद आप उसका देख सकते हो इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो इंटेग्रिटी क्या है उसकी। सो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब अगर आपके सिस्टम को अनऑथराइज यूजर एक्सेस कर रहा है, तो ये स्ट्रेट अवे उसकी इंटेग्रिटी को इम्पैक्ट है, ठीक है। सो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ आपकी इम्पैक्टफुल हो गई है। इंटेग्रिटी इम्पैक्ट होगी तो उसके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी भी गई, क्योंकि अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है, और तो सिस्टम में चेंज हुई नहीं हुई वो नोस। और उसके बाद तीसरा अवेलेबिलिटी, इफ अ पर्सन कैन एक्सेस योर सिस्टम, ही और शी कैन मेक such a changes जो कि आपके सिस्टम को स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एन सर्विस अवेलेबिलिटी परस्पेक्टिव। इसकी एक सिंपल एग्जांपल आपने देखी होगी, बॉट्स के थ्रू जो है डीडॉस अटैक्स होते हैं, कि वेबसाइट जो है वो डाउन हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ट्रैफिक इतनी हिट की जाती है थ्रू द डीडॉस अटैक्स कि वो रिस्पॉन्ड करने से पहले सिस्टम क्रैश करने लग जाते हैं। So vulnerability is in a simple language is a weakness in your system, ठीक है। उसके लिए आपको remediations करनी होती हैं कि इसको मैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से कैसे रिजॉल्व करूं, और अगर मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता तो मैं इसके अगेंस्ट कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल ऐसे लगाऊं जिससे कि ये इसका जो इम्पैक्ट है टू माय बिजनेस या जो मेरा रिस्क एसोसिएटेड है वो कम हो, ठीक है। और लास्ट थिंग है थ्रेट एक्टर, जो मैं थ्रेट एक्टर इज बेसिकली एनीवन जो कि आपके उन सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है फॉर द सोल पर्पस ऑफ गेनिंग सम फाइनेंशियल फाइनेंशियल बेनिफिट, या इन शॉर्ट इम्पैक्टिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने फाइनेंशियल बेनिफिट्स की टर्म स्पेसिफिकली यूज किए क्योंकि एंटरप्राइज के जो ऊपर अटैक्स होते हैं 99% ऑफ द टाइम जो लोग अटैक कर रहे होते हैं वो लोग बेसिकली फोकस कर रहे हैं फाइनेंशियल गेन का, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ हैकर्स भी है जनरली कम्युनिटी के अंदर के न्यूबीज जिसे हम कहते हैं, न्यूबीज है, एक्टिविस्ट है, कि जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन वो लोग चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं, दे टेस्टेड आउट ऑन द पब्लिक वेबसाइट्स और पब्लिक कंपनीज एज वेल, और उसके अगर सक्सेसफुल होते हैं तो वो कंपनीज का बेसिकली इम्पैक्ट होता था, अवेलेबिलिटी नहीं रहती रिसोर्स की, ठीक है। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अब हमें जब हो गया कि वल्नरेबिलिटी क्या है मेरे सिस्टम में, थ्रेट एक्टर्स जो थ्रेट्स हैं बेसिकली टाइड अप उसके साथ, और मेरे एसर्स एसर्स यहाँ पे मैं रेफर कर रहा हूँ वो एप्लीकेशन सर्विस, वो सिस्टम जिसके ऊपर आपका कोई ना कोई सोल्यूशन रन हो रहा है, ठीक है।
इन सब में मेरा रिस्क कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। रिस्क अगर आप यहाँ पे भी देखें डायग्राम के अंदर, रिस्क इज एक्चुअली राइट ओवर हियर एट द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री, ठीक है। उसकी अब रीजन क्या है कि आपके एसेट्स वो डिफरेंट चीजें रन कर रहे होंगे, अब उसके रेलिवेंट आपके पास हंड्रेड्स ऑफ क्या कहते हैं वल्नरेबिलिटीज होंगी, थ्रेट्स होंगे, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जो रेलिवेंट होगा वो शायद यहाँ पर होगा, ठीक है, विच इज मोर क्रिटिकल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, योर कंपनी और योर एम्प्लॉयर। आपने इसकी मिटिगेशन के लिए हर वर्क एफर्ट करनी है कि इसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए। और हमेशा रिस्क रिडक्शन के लिए अगेन फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क्स हैं, निस्ट के हैं, आईएसओ के हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और आप उनको भी यूज कर सकते हो। लेकिन फोकस हमेशा ये होता है कि सिस्टमैटिक अप्रोच हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू एक्चुअली मेक अ प्रोग्रेस, वर्सेस के ओवरनाइट आप ट्राई करो कि जी मैं आज बैठा हूं तो मैं सब कुछ रिजॉल्व करके उठूंगा, ऐसा नहीं होता। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज कि ठीक है, हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि सिक्योरिटी रिस्क, वल्नरेबिलिटीज, थ्रेट्स, एक्सप्लॉयट्स, ये सब क्या होता है, इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है सिक्योरिटी में, और व्हाई इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस वन। बैक इन द डेज बिफोर द क्लाउड एरा, हमारे पास क्या होता था कि जी हम लोगों ने सर्विसेज डिप्लॉय की हैं कंपनी के डेटा सेंटर्स में, ठीक है। हमने उन डेटा सेंटर्स में सर्विसेज डिप्लॉय की, वो सर्विसेज अब वहाँ पे चल रही हैं। डेटा सेंटर में एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही है, विच इज़ थ्रू योर फायरवॉल्स, और आपने सारे कंट्रोल्स वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए। दैट वाज अ सिंपल डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है, बैक इन द डेज। इसकी मैं अगर डे लाइफ में, जो डेली लाइफ में हमारे एग्जांपल्स हैं, आप इसके सिंपल इस तरह से कंसिडर करें कि आपके घर में एंट्री और एग्जिट का एक ही जगह है, विच इज़ योर मेन डोर, ठीक है। आप उस मेन डोर से आ रहे, मेन डोर से जा रहे हो, तो आपकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उस मेन डोर के ऊपर लॉक्स लगाए हैं टू प्रोटेक्ट थिंग्स विच आर इनसाइड द होम, ठीक है। अब क्या हुआ है क्लाउड की वजह से कि कंपनीज ने मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज ली हुई हैं, वेदर इट्स SaaS, PaaS और IaaS, डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पे यूजर्स बैठ के काम कर रहे हैं। जैसे कोविड की मैंने एग्जांपल दी कि लोग घरों में बैठ के काम कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। रिमोट कनेक्टिविटी हो रही है, आपके यूजर्स के पास उनकी पर्सनल डिवाइसेस भी हैं जिसके थ्रू वो आपके क्लाउड के ऊपर डेटा रिसोर्सेज वगैरह एक्सेस कर रहे हैं। ये सब चीज़ें इवेंचुअली फ्रॉम अ सिक्योरिटी परस्पेक्टिव मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि हम एंड टू एंड सिक्योरिटी कैसे दें, क्योंकि इसके साथ एक चीज़ मैंने शुरू में भी बात की थी कि सिक्योरिटी नीड्स टू बी ए बिजनेस इनेबलर, ठीक है। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम कैसे बिजनेस के जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प करें, वर्सेस के हम इन्फोर्स करें सिक्योरिटी जो कि बिजनेस के गोल्स अचीव ना करने दें, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों की जो कॉम्बिनेशन है फ्रॉम एन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव जनरली, हमें उसको देखना पड़ता है कि इसको किस तरह से लेके चलना है, क्या चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, और ये सब चीज़ें आपस में कलेक्टिवली कैसे काम करेंगी, क्योंकि एप्लीकेशन एट एन इंडिविजुअल लेवल वो ठीक से चल रही होगी। ईमेल सर्विस है जैसा ऑफिस 365 है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, उसमें आपकी ईमेल सर्विसेज है, आप ईमेल्स यूज कर रहे हैं, आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। अब उसके साथ ही एक और सर्विस है शेयर पॉइंट, उसके साथ फिर है टीम्स, उसके साथ भी दूसरी सर्विसेज भी हैं। अब इंडिविजुअल लेवल पे वो सर्विसेज काम कर रही हैं, बट एज ए सिक्योरिटी हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होती है कि अब एक यूज़र रियाज जो है वो ईमेल्स में क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो शेयर पॉइंट में क्या एक्टिविटी करता है, वो टीम्स के अंदर क्या एक्टिविटी करता है, और इन सब एक्टिविटीज़ का जो कॉम्बिनेशन है, एग्रीगेट जो मेरे पास आ रहा है, वो एग्रीगेट जो है बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे वो एग्रीगेट मेरा क्या बना रहा है कि रियाज के जो बिहेवियरल एक्टिविटीज़ हैं सिस्टम के अंदर, इज इट अ नॉर्मल एक्टिविटी, या रियाज कोई मलिशियस एक्टिविटीज कर रहा है कि रियाज डेटा डाउनलोड कर रहा है, ईमेल्स कर रहा है, डिलीट कर रहा है, या लैटरल मूवमेंट कर रहा है। वो सब चीज़ों की बेस पे एज ए सिक्योरिटी वी नीड टू हैव द विजिबिलिटी, और हमें ये डिफरेंट एक्टिविटीज इन डिफरेंट सिस्टम्स, एप्लीकेशंस, डिवाइसेस हमें को रिलेट करनी होती हैं बैक एंड के ऊपर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजी का ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका हुआ है, और इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का ज़्यादा फोकस होता है सिंप्लीफिकेशन, कंसोलिडेशन एंड प्लेटफॉर्म सिक्योरिटीज। अब मैं बात करूं कुछ मॉडल्स के ऊपर, ठीक है। मैंने काफ़ी रेफरेंसेस भी दिए फ्रेमवर्क्स के, जनरल फ्रेमवर्क्स के, मॉडल्स के, ये वो। इंडस्ट्री में आपको मल्टीपल बज़वर्ड्स मिलेंगे इस तरह के। डिफेंस इन डेप्थ इज अ गुड एग्जांपल, ठीक है। आजकल जिस तरह से यूज हो रहा है जीरो ट्रस्ट प्रिंसिपल, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क्स,
दे ऑल आर द सेम टर्म्स, ठीक है। द थिंग दैट आई वांट टू मेक श्योर कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि ये सब फ्रेमवर्क्स दे आर रियली 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 गुड स्टार्ट, ठीक है, बट ये आपको सिक्योरिटी, कंप्लीट सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करते। दे प्रोवाइड यू द सिक्योरिटी टू द एक्सटेंड जहाँ पे जो रिमेनिंग सिक्योरिटी में जो वीकनेसेस रह जाती हैं आपकी, दे मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द बिजनेस, बट द रिस्क एक्सपोजर इज वेरी मिनिमल, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी टेक्नोलॉजी, पीपल एंड प्रोसेस। और मैं जिस टाइम इसको अगर स्ट्रेटेजाइज करूं, अगर मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन सोचूं, तो मुझे सबसे पहले पीपल के बारे में सोचना है, देन आई नीड टू टॉक अबाउट द प्रोसेसेस। टेक्नोलॉजी इज द लास्ट थिंग फ्रॉम एन इम्प्लीमेंटेशन स्टैंड पॉइंट। रीजन कि जो भी सर्विस है वो मेरा कोई ना कोई यूजर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, एंड दे आर माई वीकेस्ट लिंक एज वेल। उसके बाद मेरे प्रोसेसेस हैं, मेरे प्रोसेसेस में मेरी गवर्नेंस आ जाती है, मेरी ऑटोमेशन आ जाती है, मेरे सिक्योरिटी कंट्रोल्स आ जाते हैं कि मैंने किस तरह से किए हैं, कैसे मेरा इंसिडेंट रिस्पॉन्स होगा, हाउ वेल प्रिपेयर्ड आई एम व्हेन इट कम्स टू कि मैं डिफरेंट चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करना चाहूँ, ठीक है। लास्ट पे आ जाती है टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन, विच इज़ मोर लाइक कि आपने प्रोडक्ट्स डिसाइड किए हैं, आप कौन से यूज़ करोगे, आपने प्रोडक्ट्स को लेके इंप्लीमेंट किया और आपने उनकी कॉन्फ़िगरेशंस की एज पर योर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। सो व्हेन आई टॉक अबाउट के सिक्योरिटी के मतलब हैं मॉडल्स हैं, अब इनमें मैं थोड़ा सा सॉल्यूशंस पे स्विच करना चाहता हूँ, ठीक है। अगेन इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाएंगे, इफ यू लुक एट फ्रॉम अ डिफरेंट रोल्स एंड जॉब्स पर्सपेक्टिव, आपको डिफरेंट जॉब्स नजर आएंगी विद डिफरेंट टाइटल्स, डिफरेंट थिंग्स, but in reality, at the end of the day, the core components that every single company is working on is these five, ठीक है। इसके अलावा भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा नहीं है, but these are the top priority for the customers right now that I have seen in the field, ठीक है। इसमें मैंने कुछ खास चीज़ें नहीं इंक्लूड की deliberately क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे हैं और वो IoT और OT सिक्योरिटी, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। जनरली जिस हम सिक्योरिटी सोल्यूशन में बात करते हैं, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, आप अपने यूजर्स की आइडेंटिटी का, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में यूजर अकाउंट कहते हैं या अकाउंट नेम कहते हैं और पासवर्ड, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड क्या है आपका, ठीक है, आप उसको मैनेज कैसे करते हैं बैक एंड पे अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में या अपने आइडेंटिटी सिस्टम्स के अंदर। उसके बाद उसी के अंदर आ जाता है कि एक उस यूजर्स की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। उसमें आपका आ जाता है रेगुलर यूजर, जो एक आपका स्टैंडर्ड एम्प्लॉय है जो कि चीज़ें यूज़ कर रहा है। उसमें आपका आ जाता है प्रिविलेज यूजर, जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर्स है। उसमें आपके आ जाते हैं सर्विस अकाउंट्स, कि आपकी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन या वर्कलोड टू वर्कलोड जो इंटीग्रेशन हुई हुई हैं वो किसी यूजर अकाउंट के थ्रू रन हो रही हैं, और उसको हम सर्विस अकाउंट, क्योंकि उनके ऊपर डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी अप्लाई होती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है। इसमें फिर आ जाता है आपके यूजर का, जब आपने न्यू एम्प्लॉय हायर किया कंपनी में, उसकी ऑनबोर्डिंग, ऑफबोर्डिंग और या ट्रांसफर के एक टीम से दूसरी टीम में ट्रांसफर हुआ, वो सब प्रोसेसेस कैसे होंगे, पूरा उसका जो लाइफ साइकिल है उसके यूजर आइडेंटिटी का, ठीक है, जो डिजिटल आइडेंटिटी होती है कंप्यूटर के अंदर, वो कैसे मैनेज हो रहा है। उसके बाद फिर आ जाती है आपकी एंड पॉइंट सिक्योरिटी। अब एंड पॉइंट के अंदर आपके एज सिंपल एज के आपके विंडोज के जो लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स, वर्क स्टेशन, यो मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है, वो सब आ जाते हैं कि उनके ऊपर एंटीवायरस, EDR सोल्यूशन, उसके बाद आपकी इंक्रिप्शन, उसके अलावा आपके DLP सिक्योरिटी कंट्रोल्स और दूसरे जो कंट्रोल्स हैं वो सब आते हैं। और इसी में आपको बीच में मिलेंगी चीज़ें, क्योंकि मैंने सेपरेटली कॉल आउट नहीं किया हुआ नेटवर्क सिक्योरिटी, क्योंकि मैं यहाँ पे से कॉल आउट कर रहा हूँ कि एंड पॉइंट सिक्योरिटी के साथ टाई आप करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, कि आपके नेटवर्क की जो फायरवॉल्स हैं, आपके जो राउटर्स हैं, आपके जो स्विचेस हैं, उसके अलावा जो आपके जो डिफरेंट वाईफाई की मैश कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनकी सिक्योरिटी आप कैसे मैनेज कर रहे हो। देन नेक्स्ट आ जाता है क्लाउड सिक्योरिटी। अगेन कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर, SaaS, PaaS सर्विसेज यूज कर रही हैं क्लाउड के ऊपर या माइग्रेट कर रही हैं उसके ऊपर। एक सिंपल आंसर है कि जी हमारे जो ऑन प्रेमिसेस पे सिक्योरिटी कंट्रोल्स थे, हम वही के वही सिक्योरिटी कंट्रोल स्लैश सॉल्यूशंस क्लाउड में यूज करेंगे। बट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद द क्लाउड इज, और यहाँ से क्लाउड सिक्योरिटी के एक ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन है, ठीक है। वो ये है कि जी ऑन प्रेमिसेस के अंदर आपके पास कंट्रोल है कि आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है। क्लाउड के अंदर नहीं है। क्लाउड के अंदर तो आपने हर चीज एक पब्लिक इंटरनेट के ऊपर रखी हुई है, जिसके ऊपर हर कोई एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि जब उन्होंने वो ब्रेक इन किया और आके सिस्टम के अंदर इन हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ये एक एरिया ऐसा है जिसपे के डेवलपर्स जो हो गए, डेवलपर्स की कम्युनिटी मैं के साथ बहुत काम करता हूँ।
एप्लीकेशंस के कोड लिखे जाते हैं और उसके अंदर बड़ी मतलब एप्लीकेशन फंक्शनलिटीज अच्छी हैं, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन। ठीक है, सिंपल एग्जांपल इज स्टैटिक टेस्टिंग होती है आपकी। ठीक है, स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग होगी, सैस्ट कहते हैं। उसके बाद डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है, डैश कहते हैं। ठीक है, इन टेस्टिंग्स के अंदर आप जो एप्लीकेशन की लॉजिकल फ्लो है, जो उसको आप टेस्ट कर रहे होते हो कि एप्लीकेशन जो कर रही है सो कर रही है, बट हाउ डू एक्चुअली ब्रेक द एप्लीकेशन। क्योंकि अगर आप सोचो कि एक एज ए हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका गोल यही है कि मैं इसको ब्रेक करके जो भी मेरा मतलब जो मेरा गोल है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं उसको कैसे अचीव करूं। और लास्ट पे आ जाता है डेटा। अब डेटा की सिक्योरिटी होगी, उसकी कंप्लायंस होगी, उसकी गवर्नेंस होगी, क्योंकि आपके पास डेटा डिफरेंट किस्म का है। आपके पास है सिंपल एज, अगर मैं किसी बैंक की बात करूं तो बैंक के बाद आपके बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर आपकी फाइनेंशियल्स पड़े हैं, आपके ट्रांजेक्शन होती हैं, आपके क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन है। उनके ऊपर रेगुलेशंस तो आती हैं, लेकिन उन रेगुलेशंस के साथ कंट्रोल्स जो इंप्लीमेंट करने हैं उस डेटा सिक्योरिटी को कंपनी के अंदर, वो कौन है जो कि उसकी ऑनरशिप लेगा। ठीक है, अब उसमें और मैं जो सिक्योरिटी के कंट्रोल्स हैं, मैं किस तरह से डिफाइन करूं कि जी डॉक्यूमेंट ए वर्सेस डॉक्यूमेंट बी, मैं कैसे इन कंट्रोल्स में डिफरेंशिएशन करूंगा। ठीक है, कि ए के ऊपर मुझे ज्यादा कंट्रोल्स लगाने हैं, बी पे कम लगाने हैं फ्रॉम सिक्योरिटी परस्पेक्टिव। तो उसके लिए बैकएंड पे सॉल्यूशंस यूज होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट परव्यू का सॉल्यूशन है जो कि डेटा क्लासिफिकेशन करता है, उसके बाद उसका लेबल अप्लाई करता है और उस लेबल के साथ प्रोटेक्शन अप्लाई करता है कि जो भी लेबल है उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर प्रोटेक्शन अप्लाई हो जाए। ठीक है, एंड देन उसके अगेंस्ट डेटा के ऊपर उसकी कंप्लायंस, रेगुलेटरी जो कंप्लायंस है, जो मैंने अभी बात की बैंक्स की और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन की बात की, तो ये पीसीआई डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है, पीसीआई डीएसएस, जो कि रिक्वायरमेंट है एनी कंपनी दैट इज प्रोसेसिंग दी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो उनको उनके साथ कंप्लायंट, उनकी कंट्रोल्स की रिक्वायरमेंट्स भी है, वो इंप्लीमेंट होने चाहिए। और इवेंचुअली आपका ओवरऑल डेटा गवर्नेंस, जिसे गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस कहते हैं, जीआरसी, आप उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हो फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशनल परस्पेक्टिव। अब इन्हीं सॉल्यूशंस एरियाज को अगर मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करूं फ्रॉम एन सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट कि मैं सिक्योरिटी में मैं काम कर रहा हूं, तो मैं सिक्योरिटी में कैसे इसे ट्रांसलेट करूंगा टुवर्ड्स दी सर्विसेज। ठीक है, अब ये आ जाती हैं आपकी सर्विसेज जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स जिसमें होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो ऑफर करती हैं टू द कस्टमर्स। सबसे पहली है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। इसे एक सिम कहते हैं, इस सोल्यूशन पर से। ठीक है, ये जनरलाइज नाम है। ठीक है, इसका सॉरी, इसका एक सिंपल नेम इस तरह से भी है कि इसको आप लॉग मैनेजमेंट कह सकते हो, बट उस लॉग मैनेजमेंट के ऊपर आपके एनालिटिक्स रन हो रहे हैं जो कि आपका सारे डेटे की कोरिलेशन करने के बाद आपको उसके ऊपर डिफरेंट एनालिटिक्स करने के बाद आपको अलर्ट्स ट्रिगर कर रहा है कि यूजर की एक्टिविटीज गुड है, बैड है, और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई साइबर अटैक हो रहा है तो वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके और उसके अगेंस्ट आपको ट्रिगर करता है। ठीक है, अब इसमें जिस तरह डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट सोल्यूशन, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का सेंटिनल का सोल्यूशन आपने सुना होगा, उसका माइक्रोसॉफ्ट का सेंटिनल इज ए सिम सोल्यूशन। ठीक है, और इसी तरह से कंपैरेटिव प्रोडक्ट्स भी हैं, जिस तरह से मतलब आपका है ये स्प्लंक हो गया। ठीक है, आपका हो गया क्यूरेडार हो गया, और डिफरेंट सोल्यूशन है जो कि एज ए सिम सोल्यूशंस यूज होते हैं। उसके बाद आपका आगे जी दूसरी चीज है, दैट इज द मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर। आप लोगों ने मैनेज सर्विस प्रोवाइडर के बारे में सुना होगा, या जनरली आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, पाकिस्तान में भी काफी ग्रूम कर रहा है, वो है जी आउटसोर्सिंग। ठीक है, आपने क्या किया जी, आपने एक प्रोजेक्ट उठाया, आपने प्रोजेक्ट किसी को आउटसोर्स कर दिया और उसमें इन बिटवीन आपने अपना प्रॉफिट अपने पास रखा। ठीक है, अब सिक्योरिटी के अंदर जब हम सिक्योरिटी की सर्विसेज की आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, जब कंपनीज आपको सर्विस आउटसोर्स करती हैं, तो जो कंपनी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है उसको मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज का प्रोवाइडर कहा जाता है। ठीक है, अब ये इसके अंदर जैसे डिफरेंट कंपनीज है, मैं नाम लूँ तो एसेंचर्स हो गया, पाकिस्तान के अंदर सिस्टम्स लिमिटेड है जो मुझे पता है कि मैनेज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मुझे 100% श्योर नहीं है कि वो सिक्योरिटी में देते हैं या नहीं देते। तो इस तरह से और भी कंपनीज है जो कि मैनेज सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं और सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी स्पेसिफिक चाहिए होती हैं। उसके बाद आगे इंसिडेंट रिस्पॉन्स। अब इंसिडेंट रिस्पॉन्स भी एक सर्विस है। ठीक है, अब ये सर्विस जो है, अगर बात करूं इसकी बहुत ब्रॉड टर्म है। ठीक है, क्योंकि कंपनीज के अंदर इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिक्योरिटी की वजह से नहीं हो सकता। तूफान आया, ठीक है जी, तूफान आया जी, बिजली डिस्कनेक्ट होगी,
प्राइमरी जो ऑफिस के वर्किंग लोकेशन या वो वर्किंग लोकेशन पे लोग काम नहीं कर सकते, दैट्स एन इंसिडेंट। इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है? आपकी प्राइमरी डेटा सेंटर के अंदर जो आपकी पावर कनेक्टिविटी थी या इंटरनेट कनेक्शन था वो डाउन हो गया, आपकी इंटरनेट सर्विसेज सारी डाउन हो गई हैं, दैट्स अनदर इंसिडेंट। ठीक है, सो इंसिडेंट्स आपके डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। Security incident is actually a subset of the incident response plan. Incident response plan broad company level पर बनाया जाता है, जिसे दूसरे टर्म्स में बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी भी कहते हैं। ठीक है, उसमें सिक्योरिटी का इंसिडेंट रिस्पॉन्स है कि अगर कंपनी के ऊपर साइबर अटैक होता है तो how we are going to respond based on the impact of the company. नेक्स्ट वन इज अ थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज। ये टीआई सर्विसेज जो है बेसिकली आपकी होती हैं कि आप साइबर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने पढ़ा होगा ओपन सोर्स जो हमारे हैं और डिफरेंट कंपनीज हैं, वो थ्रेट इंटेलिजेंस मेंटेन कर रही होती हैं। उसमें क्या इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रही होती हैं? उसमें इंफॉर्मेशन उनके पास होती है कि आपके ये आईपी एड्रेसेस की रेंज है जहां से मलिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं, ये यूआरएल्स हैं जहां पे मलिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं। ये वाले बेसिकली थ्रेट एक्टर्स हैं जिनका के कंपनीज पे अटैक करने के पैटर्न्स ये हैं। तो अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन एडवांस में आए तो आप अपना सिक्योरिटी पोस्चर इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि आप उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे अपनी जो कंट्रोल्स हैं वो डिप्लॉय कर सकते हो। कि सिंपल एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि आईपी एड्रेसेस हैं या यूआरएल्स हैं, आप अपनी कंपनी की फायरवॉल्स पे अगर वो आईपीज और यूआरएल्स ब्लॉक कर दोगे कि यहाँ से कोई भी ट्रैफिक आपकी कंपनी में नहीं आ सकती, तो वो ऑटोमेटिकली आपका पोस्चर इंप्रूव कर देगा। और उसके लास्ट अगर आपको थ्रेट एक्टर्स का पता है कि ये थ्रेट एक्टर ये वाला जो है ये फाइनेंशियल कंपनीज को इम्पैक्ट कर रहा है और इनके टैक्टिक्स ये हैं कि ये इस तरह से अटैक करते हैं, तो आप उन टैक्टिक्स को देखते हुए आप कोई ना कोई अपने रिमीडिएशंस डिफाइन कर सकते हो। और लास्ट के ऊपर वही है कि जैसे डेटा सिक्योरिटी की मैंने बात की, इसमें कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट की भी सर्विसेज होती हैं जो कि कंपनीज आउटसोर्स कर देती हैं टू द थर्ड पार्टीज। और इसमें लीगल अटर्नीज वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट और व्हेन इट कम्स टू कंप्लायंस उसमें अटर्नीज की भी इनपुट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, डिपेंड्स ऑन कि आप किस किस्म की कॉम्प्लायंस की बात कर रहे हैं ना। मैं सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं फ्रॉम ए करियर पाथ पर्सपेक्टिव कि आपने अगर करियर पाथ देखना हो तो इसमें आपके क्या रोल्स हैं जो आप टारगेट कर सकते हो या आप प्लान कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, तो सिक्योरिटी एनालिस्ट सबसे पहले आता है। ठीक है, अगेन इसमें लेवल्स होते हैं 1 2 3। ठीक है, डिपेंड्स ऑन हर कंपनी का अपना रोल होता है, अपना तरीका होता है इसको डिफाइन करने का। लेवल 1 इज मोर लाइक ए बिगिनर लेवल, level 2 is intermediate, and then level 3 is your advanced level slash expert level। ठीक है, सिक्योरिटी एनालिस्ट आपके होते हैं जो कि आपके डे टू डे बेसिस के ऊपर सिक्योरिटी अलर्ट्स इवेंट्स वगैरह को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स, जो कि जैसे मैं खुद एक सिक्योरिटी आर्किटेक्ट हूँ, हम लोग काम क्या कर रहे थे, हम लोग ओवरऑल एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को देखते हुए डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारा सिक्योरिटी पॉस्चर या सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या कैसा होगा। ठीक है, आपके एंट्री पॉइंट्स हैं, आपके एग्जिट पॉइंट्स हैं कंपनी के अंदर, आपके सर्विसेज रन हो रही हैं, आपका डेटा फ्लो होने लगा फ्रॉम एप्लीकेशन ए टू एप्लीकेशन बी, प्रोटोकॉल्स की कनेक्टिविटी, वो सब कुछ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर हम सिस्टम डिजाइन के अंदर डाल रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है रेड ब्लू पर्पल टीम। ठीक है, और इसके बारे में आप डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट पढ़ोगे। ठीक है, बट जनरली क्या होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो एक सर्विस होती है जिसे कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। उस पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए इंटरनल टीम्स भी होती हैं, एक्सटर्नल टीम्स भी होती हैं। वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कर क्या रहे होते हैं कि हम खुद इनवाइट करते हैं जो कि हैकर्स होते हैं। मतलब अगेन हैकर्स में भी अगर आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ कर रहे हो, यूर अ गुड हैकर, वर्सेस नेगेटिव इम्पैक्ट इंटेंट के साथ कर रहे हो, यूर अ बैड पर्सन, राइट। तो होता क्या है कि आप उसमें आप उन हैकर्स को या कंपनीज को इनवाइट करते हो और उनसे कहते हो कि हमारी ये सर्विसेज एप्लीकेशंस वगैरह जो हैं इसके ऊपर ना इनको पेनिट्रेट करो और देखो कि इसमें कोई वनएबिलिटी रिस्क एग्जिस्ट करता है जिसे कि थ्रेट एक्टर एक्सप्लॉइट कर सके, ताकि मोर लाइक ए प्रोएक्टिव आप काम कर रहे हो कि खुद असेसमेंट्स करवा रहे हो कि आप उसको अगेंस्ट कंट्रोल्स डिफाइन करके इम्प्लीमेंट कर सको और उन कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करके आप अपना पॉस्चर इंप्रूव कर सको ताकि आपकी कंपनी को इम्पैक्ट ना हो। अगेन इसमें 3 डिफरेंट टर्म्स होती है, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, पर्पल टीमिंग। रेड टीमिंग बेसिकली अगेन इसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें डिफरेंट टीम है जो कि काम कर रही होती है, इनके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, डिफरेंट बाउंड्रीज और स्कोप्स होती हैं। ठीक है, रेड और ब्लू टीम मोस्टली ज़्यादातर इकट्ठे काम करती है और ये बेसिकली ओवरऑल इनका गोल सबका यही होता है कि आपका सिक्योरिटी पॉस्चर इंप्रूव किया जाए।
देन उसके बाद आ गया आपका थ्रेट इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी रिसर्चर्स, ये सब चीज़ें जो है ये इवेंचुअली थ्रेट इंटेलिजेंस पे भी जाती हैं, जहाँ पे कि सिक्योरिटी के जो रिसर्चर्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली बैठे थ्रेट इंटेलिजेंस को अपडेट कर देते हैं बेस्ड ऑन दे व्हाट दे आर लर्निंग अबाउट द थ्रेट एक्टर्स, कि वो इंडस्ट्री में या मतलब किस तरह से टैक्टिक्स और टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हुए अटैक करने लगे हुए हैं। और लास्टली आ जाती है आपकी डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी में अगेन जैसा मैंने आपको बात बताई कि जी चीफ डेटा ऑफिसर होता है आपका डेटा सिक्योरिटी, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा कस्टोडियंस, और वो सब रोल्स डिफरेंट डिफाइन है कि आपका डेटा को सिक्योर कैसे करना है एंड टू एंड। और अगेन जिस तरह मैंने आइडेंटिटी की बात की थी प्रीवियसली, इसी तरह डेटा सिक्योरिटी के अंदर आपकी एंड टू एंड डेटा की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट आ जाती है कि मेरी कंपनी में अगर मैं डेटा रिटेन कर रहा हूँ 10 साल के लिए, तो वो 10 साल के अंदर डेटा कैसे रिटेन होगा, कैसे मैनेज होगा, कैसे वो मेरा प्राइमरी स्टोरेज से मूव होके बैकअप पे जाएगा, बैकअप से मेरा आर्काइव पे जाएगा, और आर्काइव से मैं कैसे उस डेटा को परमानेंटली डिलीट करूंगा ताकि मेरी कंपनी की लायबिलिटी कोई ना हो। ये सब चीज़ें बेसिकली इन डिफरेंट रोल्स के अंदर फोकस होती हैं। और अगर आप मतलब फ्रेश ग्रेजुएट हैं या आप ग्रेजुएट कर रहे हैं द नेक्स्ट 6 to 9 months, ठीक है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इन रोल्स को एक्सप्लोर करना शुरू करें, क्योंकि इन रोल्स में क्या है, आपको बेसिक जो है ना, मैंने बताया लाइफ, ये जो आपकी इर्द गिर्द की चीज़ें हो रही हैं उनके साथ को रिलेट करें। मैं बड़ा एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगेन मैं सिक्योरिटी आर्किटेक्ट हूँ और मैं रेड ब्लू टीमिंग के एक्सरसाइज में भी इंगेज होता हूँ। तो हमारा क्या होता है कि जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी शुरू में कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, उसके बाद आपको कोई ना कोई पिन जो है वो आपको एसएमएस पे आता है या ईमेल पर आता है या फोन कॉल पे आता है जो आपने एंटर करना होता है, देन यू गेट इनटू द सिस्टम, राइट। अब उसमें क्या है कि सिस्टम आपका सिंपल एक पासवर्ड को ट्रस्ट नहीं कर रहा। एंड व्हाई इट्स नॉट ट्रस्टिंग योर पासवर्ड? बिकॉज इट्स इजी टू ब्रेक इन। तो उसका हल क्या है कि मैं एक सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी यूज करूं। अब अगर आप इसको डेली लाइफ में अगर लें, आप डेली लाइफ की जो आपके सिनेरियोज हैं, ठीक है, आप डेली लाइफ के सिनेरियोज में लेके आप एयरपोर्ट जाते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आप सिक्योरिटी चेक से जाते हैं, देन उसके बावजूद आपका लगेज भी चेक होता है, उसके फिर बाद आपकी इमिग्रेशन के टाइम पे आपका सिक्योरिटी चेक होता है, उसके बाद फिर आप जब जहाज में जाने लगते हैं, बैठने से पहले भी आपका बोर्डिंग पास चेक किया जाता है कि आप ही हैं वो बंदे जिन्होंने इस फ्लाइट में बैठना है, एंड इफ यू आर गोइंग इनटू द राइट फ्लाइट, और ये वो, ठीक है। अब इसमें क्या है, डेली लाइफ में अगर हम देखा जाए तो हम कहते हैं कि अच्छा यार, एयरपोर्ट एंट्रेंस के टाइम पे सिक्योरिटी चेक किया कि जी मेरी फ्लाइट है कि नहीं है, नेक्स्ट लेवल पे चेक किया थी कि मेरे पास कुछ कोई गलत चीज़ तो नहीं है, लगेज के टाइम पे चेक हो रही कि लगेज के अलावा मेरे पास वीज़ा ये वो सब कुछ है कि नहीं है, इमिग्रेशन के टाइम पे फिर चेक हुआ, उसके बाद फिर सिक्योरिटी चेक हुआ, फिर जहाज़ में बैठने से पहले मेरा बोर्डिंग पास फिर से चेक हुआ जस्ट टू मेक श्योर कि मैं सही फ्लाइट में बैठ रहा हूँ। ये क्या है, मल्टीपल आपके कंट्रोल्स है। इसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि ये डिफेंस इन डेप्थ है कि एक कंट्रोल फेल हुआ तो दूसरा कंट्रोल ले लेगा, बट द थिंग इफ यू कंपेयर विद द मल्टी फैक्टर, इट्स मोर लाइक कि आप एक के बाद दूसरा कंट्रोल वेरीफाई कर रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ें बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप कोरिलेशन करते हैं डेली लाइफ के अंदर जो आपकी चीज़ों के साथ है। हम ये जो सारे डिफेंस इन डेप्थ, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर और ये जो डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं, इन सब चीज़ों का एंड गोल क्या है? हमारा एंड गोल इज कि हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारा जो सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर है वो रिजीलियंट है, ठीक है। वाई? क्योंकि देखें, इश्यूज होते हैं। आपको मैं अगेन डेली लाइफ की एग्जांपल दूं कि जी गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डलता है, ठीक है। अब अगर आप गाड़ी में एक दफ़ा पेट्रोल डलवा लें और आपके करीब मेरी टैंकी फुल है तो मुझे दोबारा कभी डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स नॉट द केस, ठीक है। आपको क्या कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व करना पड़ता है, आपको कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। योर गोल इज कि आपकी गाड़ी चलती रहे, ठीक है। यहाँ अल्लाह ना करे कोई मसला हो तो यू कैन एक्चुअली इजी गेट द गैस एंड एवरीथिंग एंड यू कैन गो मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सिक्योरिटी में भी यही है कि आप 100% सिक्योर नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपकी सर्विस इंटरनेट पर अवेलेबल है, इसका मतलब यह है कि वो सर्विस इस मैटर ऑफ टाइम कि वो सर्विस बेसिकली अटैकर्स की नज़र में आएगी एंड दे विल अटैक इट, ठीक है। या उसके लिए कोई वल्नरेबिलिटी या इशू आइडेंटिफाई होगा डाउन द रोड और वो आके कंपनी पे अटैक करेंगे। रिजीलियंट क्यों, हमें रिजीलियंस की तरफ क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि रिजीलियंस में हमारा गोल ये है कि जी हमने जिस वक्त आपको एक सर्विस दी या सर्विस को आर्किटेक्चर बनाया, हमारा गोल ये है कि अगर थ्रेट एक्टर इन हमारी सर्विस में एक्सेस कर भी लेता है तो उसका जो ब्लास्ट रेडियस है, उससे जो इम्पैक्ट होगा वो मिनिमल हो,
उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए रेजिलियंस की तरफ जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो, वी नो दैट कि अगर कुछ हुआ भी तो इसका ब्लास्ट रेडियस इतना है कि जो कि मेरी कंपनी के लिए एक्सेप्टेबल है फ्रॉम एन बिजनेस रिस्क परस्पेक्टिव, और मैं इसके ऊपर कंट्रोल जल्दी कर सकता हूँ वर्सेस के एक चीज खराब हुई उससे सब कुछ खराब हो गया, पूरी कंपनी की चीजें खराब हो गई। अब मैंने काफी डिफरेंट चीजों की बात किया, अब इन सब चीजों को अगर आप को रिलेट करके देखें तो इसमें जो कॉमन पैरामीटर मिलता है वो ये क्या है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है सिक्योरिटी वाइज, ठीक है, आपको प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी देखनी चाहिए जो कि एंड टू एंड इंटीग्रेटेड हो, जो एंड टू एंड आपका डेटा शेयर कर रही है, जो कि आपको मैनुअल कोरिलेशन ना करनी पड़े कि जी रियाज के लैपटॉप के ऊपर उसकी एक्टिविटीज क्या थी, रियाज के ईमेल सिस्टम में क्या एक्टिविटीज थी, रियाज की किसी डेटा के ऊपर क्या एक्टिविटी थी, और उसको कोरिलेशन आपको ना करनी पड़े, ठीक है। तो इंडस्ट्री जो है बेसिकली इंडस्ट्री भी मूव कर रही है टूवर्ड्स दी प्लेटफॉर्म लेयर सिक्योरिटी, कि आप प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी के सोल्यूशंस पे जाएं वर्सेस के इंडिविजुअल के जी प्रोडक्ट ए जो है किसी कंपनी की वो बड़ी अच्छी है जी मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बी किसी बी नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट सी जो है मेरी आइडेंटिटी के लिए बहुत अच्छी है, डी किसी और के लिए अच्छी है। बेस्ट ऑफ द क्लास आपने प्रोडक्ट्स तो ले ली, लेकिन अगर वो आपस में इंटीग्रेट नहीं है, आपस में डेटा शेयर नहीं कर रही, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही, देन इट्स गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि आप सिक्योरिटी आपका डे टू डे लाइफ के अंदर वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ठीक है। नाउ जंपिंग टू द नेक्स्ट वन, कि इन सब को करने के लिए इसके ऊपर अब मैं वापस आता हूँ अपने मॉडल्स के ऊपर और अपने जो डिफरेंट मैंने बताया था बज़वर्ड्स जो इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। मैं जीरो ट्रस्ट के पॉइंट से बात करता हूँ। हमारा एट द एंड ऑफ द डे गोल क्या है कि हम एज ए सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन हम हेल्प करें टू अचीव द बिजनेस गोल्स, ठीक है। हम लोग बिजनेस के किसी भी गोल के अंदर उसके कोई इम्पैक्ट ना करें, हम बिजनेस इनेबलर्स बने ना कि बिजनेस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आप सिक्योरिटी के जो जीरो ट्रस्ट के प्रिंसिपल्स फॉलो करें, जो कि कहता है कि आप हमेशा अस्यूम करो कि आपका ब्रीच हुआ है, आप कॉम्प्रोमाइज्ड हो, और ये इसके मेन रीजन ये है कि कंपनीज में जब कॉम्प्रोमाइज होता है तो एट दैट टाइम यूजर एक्सपीरियंस या दूसरी जो एक्सेप्शन है वो नहीं देखी जाती, उस टाइम पे ये होता है कि सर्वाइवल की जंग होती है, और उस टाइम पे यही होता है कि ये कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करो टू टेक द पॉजिटिव कंट्रोल और मेक इट एक्सट्रीमली हार्ड फॉर द थ्रेट एक्टर के वो दोबारा से अटैक कर सके, ठीक है। तो हमेशा अस्यूम ब्रीच करके आप जब कंट्रोल डिफाइन करोगे तो इट्स गोइंग टू बी बेस्ट इन क्लास, क्योंकि आप हमेशा अस्यूम कर रहे हो कि अच्छा यार मेरी कंपनी के ऊपर अटैक हुआ है तो आई नीड टू प्रोटेक्ट माई होम, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करना था एक्सप्रेसली। हम जीरो ट्रस्ट के प्रिंसिपल्स में जो माइक्रो का दूसरा है वो हम कहते हैं कि जी जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है आप एक्सप्लिसिटली उसे वेरीफाई करो, ईच एंड एवरी सिंगल रिक्वेस्ट, वर्सेस के रियाज एक दफ़ा आया तो रियाज ने एक दफ़ा वैलिडेट हो गया था उसके बाद जो मर्जी रियाज करता रहे मैं आई विल ट्रस्ट हिम, ऐसा नहीं है। हम उसकी एक एक स्टेप की जो उसकी रिक्वेस्ट है उसको एवेल्युएट करेंगे। हो सकता है रियाज ने 100 रिक्वेस्ट की है उसमें से 2 लेजिमेट है या 2 लेजिमेट नहीं है, 98 लेजिमेट है, तो अगर मैं हर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करूंगा वेरीफाई करूंगा तो मैं वो 2 को डिटेक्ट कर सकता हूँ, और अगर मैं नहीं करूंगा तो देन वो में 2 भी स्किप हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट थिंग इसके हमें ये जो मेंटेलिटी है कि जी फुल एक्सेस दे दें, मुझे एक बेसिक सा काम करना है उसके लिए मुझे फुल एक्सेस दे दें। जीरो ट्रस्ट के प्रिंसिपल्स कहते हैं कि यू नीड टू ओनली गिव द एक्सेस जो कि इनफ, जिसे कहते हैं जस्ट इनफ एक्सेस, के आपको जो एक्सेस चाहिए एग्जैक्टली वो दिया, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। तो आपसे लिमिटेड एक्सेस दो जिसे लीस्ट प्रिविलेज का प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए, ना कि यूजर्स को फुल एक्सेस देने के, जिससे क्या है कि जी यूजर ने मांगा और हमने वो एक्सेस उन्हें दे दिया। अगेन अनदर व्यू कि आप जिस टाइम सिक्योरिटी की बात करें कि आपने एंड टू एंड व्यू देखना होता है, क्योंकि सिक्योरिटी इज नॉट लाइक कि जी मेरी एप्लीकेशन ए है या बी है या सी है या डी है, वी एक्चुअली नीड टू लुक एट फ्रॉम एन एंड टू एंड सिक्योरिटी परस्पेक्टिव। तो ये एक डिफरेंट व्यू था, मैं जीरो ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ से दिखाना चाह रहा था कि आपका एंड टू एंड जो सिक्योरिटी का व्यू आता है वो लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड है, एंड यू नीड टू अवॉइड दैट collusion. You need to actually work with the developers, you need to work with the application teams, business owners, और आपको वो सब चीज़ें कलेक्टिवली करके अपना पॉस्चर ना सिर्फ इम्प्रूव करना है बल्कि उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग भी करनी है। और आप इसके ऊपर ये जो नीचे मैंने फ्रेमवर्क दिया हुआ है, दिस इज एक्चुअली अ NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क वर्जन 1, क्योंकि ये अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, इसमें गवर्नेंस का भी आ गया है कंपोनेंट जो कि मैंने यहाँ डाला है। वर्जन 1 में आइडेंटिफिकेशन थी, प्रोटेक्शन थी, डिटेक्शन, रिस्पॉन्ड एंड रिकवरी थी, लेकिन इसमें जब ये अपडेट हुआ इसमें वर्जन 2 आया तो इसके अंदर ये गवर्नेंस का कंपोनेंट भी अटैच हो गया है कि गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब गवर्नेंस में मैं बात करूं तो मैं
गवर्नेंस क्यों करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अगर क्लाउड सिक्योरिटी के पॉइंट से बात करूँ, मुझे अपना क्लाउड के अंदर सिक्योरिटी का पॉस्चर मैनेज करना है। मैंने एक दफ़ा से इम्प्लीमेंटेशन कर दी, तो वो उसके बाद वो मेरी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरह से मेरे लेके चलेगी, ठीक है। क्योंकि मुझे कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूवमेंट करनी है, तो मेरा जिस टाइम एक्सेस की लेयर आएगी तो मैं हमेशा उस एक्सेस लेयर को देखूंगा फ्रॉम एन एक्सेस कंट्रोल परस्पेक्टिव, whether it's on the network layer, whether it's the identity layer, जो भी है उसके ऊपर मैंने जीरो ट्रस्ट के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। उनके बाद मुझे अपने सिक्योरिटी का जो डे टू डे सिक्योरिटी है, डेवलपर सिक्योरिटी, जैसे आपके जगह जगह पे डिफरेंट टर्म्स यूज डेव सेकऑप्स, सेक डेवऑप्स, मतलब सिक्योरिटी ऑपरेशंस, वट एवर द टर्म्स दैट यू विल लिसन इन द फील्ड, उसमें एंड गोल क्या है कि मैंने सिक्योरिटी हमेशा लेफ्ट साइड पे मूव करनी है इक्वेशन के। लेफ्ट साइड का मतलब कि जिस वक्त आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है या कोड डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, यू नीड टू स्टार्ट थिंक अबाउट द सिक्योरिटी फ्रॉम दैट टाइम, वर्सेस के जी मैं पहले फंक्शनैलिटी का कोड लिख लूँ कि जी 2+2=4 होता है, ये मैंने कोड लिख लिया, उसके बाद मैंने टेस्टिंग कर ली, सब कुछ चल रहा है, अब इसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी को हल्का सा रैप किया एज ए फॉर्मेलिटी और देन पब्लिश इट। सो यू नीड टू एक्चुअली मेक श्योर कि आपकी सिक्योरिटी फ्रॉम द डे वन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड शुरू है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑपरेशंस आते हैं, जिसमें आप इन चीज़ों की डिविएशन से मॉनिटर, क्योंकि आपने बेसलाइन गाइडलाइंस डेवलप कर ली कि जी मेरी गाइडलाइंस ये है, मेरे कंट्रोल्स ये हैं, ये सब चीज़ें ये हैं। अब आपने उसके अंदर सिक्योरिटी ऑपरेशंस में उन चीज़ों का मॉनिटर करना है कि मेरी वो चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और वो सारी की सारी जो कलेक्टिवली है आपको एंड टू एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है। अब मैं जिस तरह से सिक्योरिटी के जो इम्पेरेटिव्स होते हैं, ठीक है, उसमें मैं अगर बात करूँ कि गवर्नेंस तो आ गई आपकी, उसमें आपको थ्रेट इंटेलिजेंस की मैंने बात करी, वो किस लिए है, ठीक है। आपको थ्रेट इंटेलिजेंस क्या चीज़ प्रोवाइड करी, अगर आप इस डायग्राम पे फोकस करें तो इसमें अगर मैं लेफ्ट साइड से शुरू करूँ कि गवर्नेंस का पूरा प्रोसेस है एंड टू एंड, ठीक है। लेकिन उसमें आप प्रोटेक्ट क्या कर रहे हो, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने एसेट्स को जो यहाँ पे मिडल में है, ठीक है। ये आपकी वीएम्स भी हो सकती हैं, एप्लीकेशन, डेटाबेसेस, व्हाट नॉट। उसके बाद आपकी जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये आपकी सारी टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स है। और उसके बाद आउट उससे जो फर्दर आउटर लेयर में मैंने यूज़ किया हुआ है वो है आपकी जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं, जो आपकी गवर्नेंस के पैरामीटर्स हैं। आप थ्रेट इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन ले रहे हो, अपने टूल्स को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ऑटोमेशंस की हुई हैं जो कि आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें डिटेक्ट करके आपका रिस्पॉन्ड कर रही हैं, वो यहाँ आ रहा है। आर्किटेक्चर आपका नॉर्थ स्टार डिफाइन कर रहा है कि जी मेरा आर्किटेक्चर जो है इस तरह से होगा, ये कंट्रोल्स होंगे, यहाँ से डेटा आएगा, यहाँ से जाएगा, क्या कंट्रोल्स होंगे, वो सारा इधर, और इसके साथ गवर्नेंस उसकी भी हो रही है। देन ये पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड की कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी की मेरी पॉलिसी कहती है कि जी मेरी हर चीज़ जो है TLS 1.2 से इंक्रिप्ट होनी चाहिए फॉर द ट्रैफिक फ्लो, ठीक है। डेटा एड्रेस शुड बी इंक्रिप्टेड, मतलब जो कि आपके पॉलिसी स्टैंडर्ड्स हैं तो वो सारे जो डिफाइन वो इंप्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। एंड इवेंचुअली आप ओवरऑल रिसोर्स का पॉस्चर मैनेज करो कि उसके अंदर पॉस्चर मैनेजमेंट में कि मेरे कंट्रोल्स इंप्लीमेंट हुए, क्या वो अभी भी इंप्लीमेंटेड है या वो कंट्रोल्स चेंज हो गए और मुझे उनके लिए कैसे मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो सारा कलेक्टिवली आपका होता है। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज में बात करूं तो ये सब एंड टू एंड जो सिक्योरिटी पॉस्चर मैनेजमेंट है और वर्कलोड को प्रोटेक्शन का प्लान है, आप इसे डिफेंडर फॉर क्लाउड के थ्रू मैनेज कर सकते हो। बिफोर एक्चुअली आई रैप अप माई प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग, मैं इस बड़ा बेसिक चीज़ के ऊपर जानना चाह रहा था। AI हम लोगों के आजकल फील्ड में बहुत यूज़ हो रहा है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कर लेगी, वो कर लेगी, जॉब रिडक्शंस ये वो। बट लुक एट द पॉजिटिव साइड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन आल्सो एक्चुअली हेल्प यू टू improve योर सिक्योरिटी posture, ठीक है। अब उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको डिफरेंट तरह के लॉजिक्स, डेटा सेट्स, मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। और उसकी आपको प्रिसाइज इंटरप्शन, लॉजिक फ्लोज क्या हैं, आपका कैसे न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगी, NLPs वगैरह, वो सब कुछ आपको उसमें डिफाइन करना पड़ता है। कुछ चीज़ों में बड़ा प्रिडिक्टेबल लॉजिक है, अगेन मैं सिंपल कॉन्वर्सेशन के लिए 2+2=4। कुछ चीज़ों में AI कंपोनेंट्स डायनामिक लॉजिक से ऊपर काम कर रहा होता है बेस्ड ऑन द इनपुट जो कि आ रही होती है, ठीक है। अब AI जो है उसको डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि AI के जो यूजेज है अगर आप बात देखें तो वो सिक्योरिटी के लिए यूज भी होता है और सिक्योरिटी को AI की भी जरूरत है, ठीक है। सो इट्स अ बोथ वे, ठीक है। AI helps security to improve their security outcomes, but on the other hand AI itself requires unique security जो कि स्टैंडर्ड जो टिपिकल अब आपके जो है सिक्योरिटी फॉर VM,
आपकी सिक्योरिटी फॉर योर नेटवर्क्स और ये वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती. सो दिस इज द अनदर एरिया जो आप करियर पाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपका एआई मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, तो अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, लुक एट दिस फ्रॉम अ सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट कि इसमें सिक्योरिटी कैसे इनकॉर्पोरेट हो सकती है. ठीक है. सो बिफोर आई एक्चुअली रैप अप, मैं एक चीज़ आपसे फिर शेयर करना चाहूँगा कि अभी आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं और जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपकी स्टडीज, आपका फील्ड का एक्सपीरियंस कुछ भी ज़ाया नहीं जाता, स्पेशली वन इफ यू थिंक अबाउट फ्रॉम अ सिक्योरिटी परस्पेक्टिव. ठीक है. क्यों? क्योंकि आपको वो सब चीज़ें हेल्प करती हैं टू टू एक्चुअली कोरिलेट एंड देन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. अगर आपको किसी सिस्टम के फ्लो का नहीं आइडिया कि कैसे वो सिस्टम काम कर रहा है, you will not be able to make a good decision or judgment on what to do from a security perspective. So with that, I'm actually going to wrap up, but I want to share some resources कि जो आप ऐसे next steps देख सकें, आप उसके बारे में पढ़ सकें. तो माइक्रोसॉफ्ट के अगेन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इवेंट्स होते हैं, न्यूज़ का है, आप यूट्यूब चैनल है, करियर्स की वह है, मतलब ट्रेनिंग्स, ये सब डिफरेंट रिसोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. इफ़ यू वांट टू, और इनके ऊपर फॉलो करें, और इनके ऊपर आप ऑनगोइंग जो सेशंस डिलीवर होते हैं, न्यूज़ आती हैं, आर्टिकल्स आते हैं, make sure you actually read about that and you actually pay attention to those things because that helps you for a long run as well. और उसके अलावा जो एक लास्ट चीज़ है जो मैं आपसे कहूँगा कि फ्रॉम योर नेक्स्ट टेस्ट परस्पेक्टिव योर लर्निंग इज़ कि आप बेसिकली क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ें. एक तो है जर्नलाइज नॉलेज अबाउट द सिक्योरिटी. द सेकेंड थिंग इज़ कि आपका जो सिक्योरिटी का जर्नलाइज नॉलेज है वो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्लीमेंट होगा. ठीक है. जिस तरह मैंने अगेन बात की थी कि मल्टी क्लाउड सिक्योरिटी, मल्टी क्लाउड सिक्योरिटी में क्या करना है, क्या नहीं करना, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, प्रोग्राम्स क्या होंगे, वो सब कुछ तो हो गया, बट वो सोल्यूशन इंप्लीमेंट कैसे होगा, प्रोडक्ट कौन सी यूज होगी. ठीक है. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, Entra ID MFA यूज करूंगा या मैं कुछ और यूज करूंगा. मल्टी क्लाउड के लिए माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड है या कुछ और है. सो पिक अप द प्रोडक्ट्स और उसके बारे में पढ़ें और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करें. ठीक है. और उसके अलावा अपनी नेटवर्किंग भी कीजिएगा. मेक श्योर कि यू एक्चुअली नेटवर्क विद द पीपल इन द इंडस्ट्री, ताकि आपको इंडस्ट्री नॉलेज मिलता रहे और आप उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर भी करते रहें और आप उनसे एक्सपीरियंस गेन भी करते रहें. And that actually helps you with your job research as well. That helps you to build the network, and that actually helps you to actually grow as an individual as well. So with that, I'm actually going to wrap up the session, and thank you so much for joining us, and I'm going to hand over to you, Raja.